evening and welcome to the day 2 of Business Automation Summit 2023. This is the first ever automation summit that we have done. Pre-COVID हमने बहुत सारे programs करे हैं, sessions करे हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पे available भी हैं जो उन sessions का part थे. Now this is the starting or the inception of something really, really big. And congratulations to all of you on witnessing it. So can we have a huge round of applause for the summit as well as you? सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा ये बताइए ब्रेकफास्ट करा है आप लोगों ने? आई होप यू हैड अ गुड ब्रेकफास्ट. एनर्जी है? लग क्यों नहीं रहा मुझे? थोड़ा सा जोर से करेंगे. 1, 2, 3. आर वी एक्साइटेड? Come on. Woohoo! Great, you guys. Thank you very much. I'm going to play a small video, audiovisual that we have prepared for Keval. Can we please have the audio? After that, we're going to welcome him. Can I have the audio, please? Automation for the nation. And the man behind it is, as we all know, who is he? Can we have a huge round of applause and can we give a standing ovation just like we invited him yesterday? Can we all stand up and have a huge round of applause for him? Can we have Keval on stage, please? Come on! Woohoo! There's a lot store for you today as well and you'll be same as yesterday. I hope you had an insightful day 1 with valuable takeaways and memorable connections. We did some networking yesterday, right? Did we? Great. Today is a brand new day brimming with exciting opportunities, engaging activities and more knowledge to absorb. So before we kick off things, make some noise and tell me how was day 1? Okay, I'll ask again. I'll not repeat. So make some noise and tell me how was day 1? Woohoo! Nice. Are you all excited? Are you guys ready for what day 2 has absorbed for you? Great. So let's start. Before that, one small thing. Let's revise yesterday's rules. कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा. किसी को स्टेज पे आना नहीं पड़ा for the dance. तो कल के रूल्स रिवाइज कर लें. कितने रूल्स कल हमने सेट करे थे? 4. ठीक है, आप लोग बताओगे. I'll tell you कि ये करेक्ट है या नहीं. फर्स्ट रूल क्या था? तो प्लीज अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए. सब पुट देम ऑन साइलेंट एंड एयरप्लेन मोड प्लीज राइट नाउ. किसी का फोन ड्यूरिंग द सेशन नहीं बजना चाहिए बिकॉज येस्टरडे सेशन वाज अमेजिंग एज यू जस्ट सेड. तो ऑब्वियसली आज का सेशन और धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोगों के फोन नहीं बजने चाहिए. सेकेंड रूल क्या था?
टाइम करेक्ट, एज समवन करेक्टली सेड, टाइम इज वैल्यूएबल. तो प्लीज सेशंस में टाइमली आ जाइए आफ्टर द टी ब्रेक, लंच ब्रेक, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड. थर्ड पॉइंट क्या था? नोट्स. Keep scribbling those notepads with all the takeaways that Keval has to share with you, so that you don't miss out on anything. Fourth and very important point, what was it? जो हम लोग कर रहे हैं, networking, learning and growing by having fun. Are we having fun, guys? Are we clear with the rules? Great. एक छोटी सी announcement है. कल मैं वही देख रही हूँ अभी भी कि कल जो लोग साथ में बैठे थे वो आज भी साथ में ही बैठे हैं. कुछ नहीं बैठे, एक्सेप्शंस तो सब जगह होते हैं ना सर. 10-20% वही 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल सब जगह एप्लीकेबल है. 80% लोग अभी भी साथ में बैठे हैं, 20% है जो इधर उधर हो गए. सो प्लीज माय रिक्वेस्ट, गेट अप फ्रॉम द सीट्स यू आर करंटली सिटिंग एट एंड नए लोगों के साथ बैठिए. नेटवर्किंग करनी है ना, करनी है नहीं करनी है? प्लीज गेट अप फ्रॉम योर सीट्स, सिट, स्विच टेबल्स स्विफ्टली एंड फास्ट. जल्दी पता भी नहीं चलना चाहिए, सीट चेंज हो जाएगी. Everybody, can I have your attention? Great. So we are doing a quick, you know I love making you clap, right? अभी तो समझ आ गया होगा. ठीक है, तो एक क्लैप के लिए मैंने एक और एक्सरसाइज निकाली है. It's 1, 2, 3, 4, 5. Finger clap. So when I'll say 1, it will be like 1. Use your left palm and one finger. When I'll say 2, it will be 2. When I'll say 3, 3. Similarly 4 and then 5. Okay? So we'll all have to do in sync. Ready? Can we please close that door, guys? Dipali, Gaurav, someone. Great. Let's start. 1. Everyone at the back as well, please. 1. 1, 2, 2, 3, 4,
5. Brilliant. Everybody is energized now? Time for our next speaker. Ladies and gentlemen, prepare to be inspired by a true visionary, industry powerhouse, Mr. Sachin Talwar. He's not... Just slow down a little. He's not just an expert in corporate events and exhibitions, he's the director of Wow Events Private Limited, a name synonymous with excellence in the event management world. For over 15 years, Sachin and his dedicated team have been the driving force behind more than 2,500 events, partnering with over 100 national and international brands across 19 countries. His committed to excellence has earned him prestigious awards including Gold and Silver EMAX Awards for dealer activation events, for Ultratech Cement and Hitachi. But Sachin's aspirations know no bounds. He's on a mission to build a 100 crore company by 2030. A lifelong learner and a passionate technologist, he's not just a visionary in business, but also a loving husband to Rupali and a proud father of Nama and Shivai. Get ready to be motivated and inspired as Sachin Talwar shares his remarkable journey and vision with us today. Can we have a huge round of applause for him? Woohoo! Hi, check. Hello everyone, how are you? How's the Josh? देखो guys, these next 20 minutes will be really important. और वो जैसे सर ने बोला कि कल आज शताब्दी चल रही है, तो ये 20 मिनट इतनी फास्ट जाने वाले हैं कि if you'll blink it, you will miss a lot of things. You will be getting a flavor of my 20,000 hours of work you'll be seeing here. So if you'll blink, you will miss. And my promise to you is after 20 minutes, at least I give you 15 to 20 aha moments which you can take away with you. और कहीं पे भी किसी को भी वो मोमेंट में वो चीज़ अगर चमकेगी तो I'll request कि आप खुल के आहा बोल सकते हैं. Okay? So thank you Anubha for lovely introduction. So you know I am into event management, but मैं यहाँ event management की कोई बात नहीं करने वाला हूँ. I am just a business owner like you. My vision is to build a 100 crore business. It is not one department or one tool or one thing. I'm thinking about the entire business. What I'm sharing here is my 100 crore blueprint, how I'll be achieving that and what things I'm doing currently. This is my current state, and I am on a journey to my desired state, like all of you. We all are into business, and one day we came into business, and like many of you, we thought कि यार हम business में आए क्यों हैं? हम क्यों आए? That's the why. When we start things with why. तो हम क्यों आए थे business में? कोई job करता था, कोई father के business में आया. They have their own reasons. मेरे reasons से I did job for 8 years, and after that I came into business. मैं चाहता था यार freedom होगी जब मैं अपना business करूँगा. बहुत पैसा आएगा, and I'll be doing what I love. These are my 3 inspiration to start my own business. Fast forward to today, not today, अब तो सब ठीक है. You can say 2019 or 2020 before joining Keval sir. What happened? Are you also in this? I'll just read out few things. Inefficiency and misunderstanding among team members. क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? Critical documents and informations are hard to locate. Weak company culture and employee morale. It's difficult to match the right resources to right task, leading to bottlenecks and delays. क्या आपके business में ऐसा कहीं पे भी कुछ ऐसा हो रहा है? Missed deadlines and unclear responsibilities, creating friction among team members. Employee burnout and lower job satisfaction. Challenges in monitoring project progress, potentially leading to delay and cost overruns. It's getting increasingly difficult to manage multiple projects simultaneously. कल किसी ने mention किया था कि multiple projects कैसे कर सकते हैं. कुछ हो रहा है आपके साथ ऐसा कुछ? And हो रहा है? And this is not it. There is more. Delays in training and role assimilation of new hire, manually keeping track of job applicants, losing good candidates in the process, difficult to tap into previous applicants' pool or internal talent for new job openings, delays in financial reporting, hindering timely decision making and strategic planning, unpredictable leads inflow, leads are neglected and not followed up in a timely manner, resulting loss of sales opportunity,
delays in responding to inquiries, diminishing customer satisfaction, and potentially driving prospect to competitors. Last but not the least, sales representative waste time on manual data entry and reporting. इसमें से एक भी कोई चैलेंज है आपके बिजनेस में किसी का? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी, लैक ऑफ सिस्टम. ये बुक का मेंशन कल से कम 3-4 बारी हो चुका है. मैं इट्स वर्थ रिपीटिंग, इट वाज देयर इन माय डेक. इफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, you don't own a business, you have a job, and it's the most worst job in the world because you are working for a lunatic, and you know who's that lunatic? So अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो टॉप 10 बिजनेस बुक में ये नंबर 1 बुक है. इस रूम में सबको पढ़ी होनी चाहिए. ई-मिथ बाय माइकल ई गर्बर. Now what further he says in that book is, he said lot of lack of system. Systems runs the business and people run systems. ये अंडरस्टैंडिंग हमको अगर नहीं है तो हम वो लुनेटिक की तरह ही काम करते रहेंगे, अपने बिजनेस में जॉब करते रहेंगे जो हम रोज कर रहे हैं. अभी भी कुछ लोग बाहर कॉल्स कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, कुछ उधर कर रहे हैं. आप जाएंगे, आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे. जोर से बोलिए. And what happens is, in absence of system, we start blaming our teams. मेरे तो एम्प्लॉयज ही खराब हैं, काम ही नहीं करते हैं, गधे पाल रखे हैं मैंने, नालायक हो सारे के सारे, तुमसे अच्छा तो मैं ही कर लूंगा. उनकी कोई गलती नहीं है, गधे तो हम हैं. So since I am in a journey of making a scalable business, वो कुछ ऐसे नहीं बन जाएंगे कि कुछ सिस्टम लगा दिए और कुछ कर दिया. What this is my viewpoint, my learning which I am sharing with you. To make a scalable business, it's a combination of right set of systems and teams. खाली सिस्टम हो, टीम नहीं हो तब भी नहीं चलेगा. टीम बहुत अच्छे आप ए प्लेयर्स ले आए लेकिन सिस्टम नहीं है तब भी नहीं चलेगा. It's a marriage between both of them if you want to scale your business to 100 crores or 1000 crores or whatever your vision is, if there is vision. Do you agree with this? Now, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरे यहाँ पे जो करंट स्टेटस है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ. यू कैन सी ऑन राइट हैंड साइड, दिस इज माय बिजनेस स्ट्रक्चर. सो आई हैव अ प्रॉपर इंट्रानेट विच आई हैव लर्न फ्रॉम केवल सर. आई हैव अ टास्क डेलीगेशन सिस्टम. It is not task delegation app, it's a task delegation system. I have a project management system. I have a HR management system. I have a account management system. I have a sales management system. I have LMS, which is LMS, learning management system. Plus, this is my team. Right now, there are 40 people. By end of December, there would be more than 50 to 60 people because I am aggressively hiring. I don't believe in multitasking. I want for each position there should be a specialist. So this is my current entire overview of my business. Now, टीम बन गई, systems आ गए, but हमको काम करवाना आता है क्या? If you really want to grow as an entrepreneur, you have to learn to delegate. Delegation is an art, right? So you need to delegate. हम बहुत बारी कहते हैं उससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता हूँ. जितनी देर में उसको बताऊंगा उतनी देर में मैं तो खुद करके आ जाऊंगा. जब तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम कैसे डेलीगेट करें और प्रॉपर सिस्टम जो सर ने टास्क डेलीगेशन टूल दिया है, एंड देन इज देयर अ प्रोसेस वेयर अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, दैट प्रोसेस विल नॉट कंप्लीट. सो हमने सर का टूल लगाया और थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज किया. सो आई गॉट माई सिस्टम सॉर्टेड. टास्क डेलीगेशन हैपन्स लाइक दिस इन माई कंपनी. देयर इज अ प्रॉपर ऐप. सो इट शोज what are the pending tasks, what are the delays and what are completed. Based on that, we get a scoring किस डिपार्टमेंट के पास कितना काम है और उसके बेसिस में उनके वीकली स्कोर्स आते हैं. हाउ मच वर्क वॉज डन, हाउ मच वर्क वॉज नॉट डन, उसका एग्रीगेट एक माइनस में उनका स्कोर आता है, जिसके लिए मुझे वीक में सिर्फ उनके साथ फॉर हाफ अ मिनट में उनसे बस ये पूछता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ये थी, नेक्स्ट वीक में आपका कैसे करने वाला है परफॉर्मेंस. आई डोंट हैव टू गेट इनटू डिटेल एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज ऑटोमेटेड. Whenever a task is delegated, automatic message is sent to their WhatsApp or in my company Slack, and a mail also goes. And once the task is completed, similarly a message goes back to the person who has assigned the task and the person who has done the task. And once it's completed, based on this,
system, what we also have is a leadership board. So every week in our group, after we do the meeting, we say, okay, Bhavya has 7 tasks. She has completed all 7 and all of 7 was done on time. So she is the top performer of the week. तो ये मेरी इमेजिनेशन या मैं कितना भव्य को लाइक करता हूँ या उसने एक लास्ट काम अच्छा किया के बेसिस पे नहीं होता. Everything is driven by data and everything is driven by numbers. Okay? So this was the delegation process जो चल रहा है. And whatever I'm showing you right now is just the flavor. इसके पीछे 20,000 घंटे का काम हुआ है. ये मत समझना कि ये हो जाए, कल आप चाहें तो हो जाएगा. You have to spend some time on it. Task delegation is taken care of. I am just touching the all business areas. Without a sales funnel, your sales team is flying blind. कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ ही कर रहा है. मतलब अगर मेरा काम नहीं बढ़ रहा, कंपटीशन बहुत है, डिस्काउंट मांगते रहते हैं, सिस्टम ही नहीं है कोई. So this is my sales system. So sales system में we are capturing each and every lead which comes into my company. Yes, you can take photographs. We are capturing each and every call. We are capturing each and every lead. Lead का source क्या है? Meetings जो fix हुई, meeting जो हो गई, each and every inquiry. Because if you don't have your data, जो सर ने कल बोला था, how will you have a predictable sale? How will you know which area you need to invest more or you need to train more your teams or people, whether you need to fix the system or whether you need a dedicated person over there. Okay, so for that you need number and you need to capture everything. So based on this, again, now we are capturing, I'll show you where all of that will come together. So हमने इतनी हम efforts करते हैं, इतनी लीड्स लेके आते हैं, उन क्लाइंट से मीटिंग भी हो जाती है, हमें पता है वो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, अगर एक भी कस्टमर क्रैक हो गया तो बहुत बड़ा काम देके जाएगा. बट फॉर सम रीज़न बिकॉज ही इज़ इन द डिफरेंट स्टेज, जो कल स्टेजेस की बात हो रही थी, वी हैव अ प्रॉपर ड्रिप मार्केटिंग टूल सर का, जिसमें हमारे पूरे इन्फिनिटी के लिए उनके मैसेजेस डले हुए हैं. एवरी पर्सन, अगर आप मेरे से आज मिले हो, मैं आपको ऐड करूँगा अपनी लिस्ट में, यू विल गेट अ मैसेज एवरी 14th डे for rest of your life. The entire journey of your lifetime of the customer, आप कभी ना कभी तो हमसे खरीदोगे. पहली बगैर भी आ गए तो operational efficiency के वजह से you will stay with us. Okay? So this system is there. Now there are various places from where customers comes to us. Whether हमने उसको approach किया, बहुत सारे कस्टमर हमारी वेबसाइट के थ्रू आते हैं. आपने इतना पैसा लगाया SEO में, आपकी साइट अवेलेबल है. अब वो क्या है, वो एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में जैसे होता है, तो वहाँ पे बॉट जो आप देख रहे हो आज, वो मैंने लगा दिया है सर का वाबा. ओके, फ़र्क इतना ही है इम्प्लीमेंटेशन का. ओके, वो बॉट मैंने लगा दिया है. तो आई ऑल्सो से माई बॉट इज़ माई नंबर 1 एम्प्लॉय इन माई कंपनी. अराउंड आई कैन से 50% ऑफ फॉलो अप वर्क और गेटिंग थिंग्स डन कोई बंदा नहीं कराता है, वो बॉट कराता है. ओके, हमको खुद इस चीज के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए. आपका जो बॉट है वो आपका नंबर 1 एम्प्लॉय है, जो इन्होंने बोला है. इमेजिन एक बंदा जो आपकी जगह ले ले, जो आपके सारे फॉलोअप्स कर ले. सो दिस इज एन एग्जांपल. सर ने भी आज एग्जांपल दिखाया था. ये उसी प्लेटफॉर्म में देखो, अगर मेरी साइट पे आके कोई हमने कैच फ्रेज रखा कि आप वाओ लिखो, पहले तो डिस्क्वालिफिकेशन डेटरेंट यही है, कोई कुछ भी आगे लिखेगा तो कूड़ा नहीं चाहिए. पढ़ा लिखा तो बंदा वाओ लिखेगा, तभी उसको आगे से प्रॉम्प्ट आता है, हाय व्हाट कैन आई हेल्प यू विद. हमने आइडेंटिफाई किया है, अ पर्सन वुड बी अ क्लाइंट, ही विल से आई वांट टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट. सम वेंडर विल कम, ही विल से आई वांट टू एसोसिएट विद वाओ. अदर विल कम, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. बेस्ड ऑन द बटन विच दे विल क्लिक, like this person was a client, he said organize event. What further question है, what type of event would you like to organize? Product launch, annual dealer meet or other? उसने लिखा other, तो उसको मैसेज चला गया. We know when this message will come कि पहले ही कस्टमर की फिल्ट्रेशन सेगमेंटेशन हो चुकी है, उसको कौन हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा, उसको कब क्या चीज़ जाएगी. एंड दीज आर द पीपल. अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ये तो बंदा रेडी है लेने के लिए. इसको तो हमें इमरजेंसी वाली ट्रीटमेंट देनी चाहिए. अगर इसको विद इन 24 आवर्स, 24 तो ज़्यादा है, हम 5 मिनट में रिप्लाई करते हैं, अगर रिप्लाई नहीं किया तो वो कहीं और चला जाएगा. सो एवरीवेयर देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम and there has to be a dedicated resource who's taking care of that particular process. Okay, so this is about bot. Now, each and every inquiry which comes into our company, we don't start work until it is captured on the Google Sheet, wherever. So, अभी ये
कुछ दिन पहले ही अपडेट है, तो जनवरी तक का काम है, अभी फरवरी तक का काम है, मैं कैसे प्रेडिक्टेबल सेल्स करूँगा अपनी अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है. सो वी कैप्चर दिस. सो व्हाट हैपेंस, वी आर कैप्चरिंग कॉल्स, वी आर कैप्चरिंग मीटिंग फिक्स, मीटिंग डन, ब्ला ब्ला ब्ला, कन्वर्जन्स. फिर क्या होता है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे ये सब नहीं करना है. मेरे को एक बार ही सिस्टम लगा दिया, अब मैं ये सिस्टम को पूरा बॉम्बे में भी छाप सकता हूँ, बैंगलोर में भी छाप सकता हूँ, दुबई में भी छाप सकता हूँ, तभी मेरी कंपनी 100 करोड़ की बनेगी. मैं खाली दिल्ली में बैठ के इतनी सी चीज़ के साथ काम नहीं कर सकता हूँ. बट आई नो आई हैव सिस्टम, आई विल हायर टीम. अभी उस पर भी आगे आऊँगा. बट मुझे क्या देखना है, अब आप देखिए मेरे पास जो डेटा है वो सारा डेटा है. मेरी लीड्स कितनी होनी चाहिए, कितनी आ गई, लीड्स में से मीटिंग कितनी हुई, मीटिंग में से ब्रीफ कितने मिले, ब्रीफ में से कन्वर्जन कितना हुआ, मेरा लीड टू विनिंग रेशियो कितना है, मेरा मीटिंग टू विनिंग रेशियो कितना है, मेरा ब्रीफ टू विनिंग रेशियो कितना है. नीचे के भी सारे डेटा है, मैंने ब्लैक कर रखे हैं. मेरे पास फ्री कैश बैंक में कितना है, टेली में नेट प्रॉफिट कितना है, मंथ और मंथ रियल टाइम में अवेलेबल है. मैंने बोला था मिस हो जाएगा. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है, काम आ जाएगा, क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, डिलीवर कैसे करोगे, ये इवेंट पे तो ये भी तो हो रहा है, कैसे होगा ये. पिछले रजत मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, किसी इवेंट में यहाँ पे मैं शायद 2 साल बाद किसी इवेंट में आया ही होऊंगा, मैं जाता ही नहीं, ये मेरा काम थोड़ी ना. Trying to manage project without project management is like trying to play football game without game plan. What is your game plan? तू ये कर देना, तू ये कर देना, तू ये कर देना, व्हाट्सएप में भेज दिया, पर्ची पे लिख के भेज दिया. So everywhere your job is to use your brain and create a system. I have a project planning sheet which consists of 15-16 other sheets. ये उसकी first sheet है. ये इसकी आप मान लो इस kind of a full kitting. Those who are into manufacturing will understand this term. Until and unless this information is available, do I do meeting, Rajat? जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम मीटिंग स्टार्ट नहीं करते कि भैया वेन्यू रेकी हो गई, प्रेजेंटेशन में फोटो लगी है कि नहीं लगी, डिजाइन के साइजेस डले कि नहीं डले. आई नॉट गेट इनटू मोर डिटेल. डिपेंडिंग अपॉन कि वेन्यू हमें कितने बजे मिल रहा है, कितना टाइम प्रोडक्शन का अवेलेबल है, वी प्लान नंबर ऑफ लेबर, कारपेंटर, पेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन हु विल बी डूइंग दैट वर्क सो दैट द डेडलाइन ऑफ गेटिंग द वर्क डन इज मेट. राइट, उसके बाद में उसकी डिटेल प्रेजेंटेशन है, डिटेल शीट्स हैं. सो there's a full kitting of information, there's full kitting of tools, there's full kitting of raw material. because अगर आपने यहाँ नहीं किया तो जब मीटिंग करोगे वहाँ पे आप बॉटल नेक होकर अपना टाइम वेस्ट करोगे कि यार अब तो ये डाल दे, आपने 10 बंदों को इकट्ठा किया, you get your time wasted. So another important sheet within this is project timeline. For every project like this also, इसकी भी बनी है. मैं पुराना एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. ट्रक गोडाउन से कब निकला, ट्रक अगर मुझे यहाँ से चंद्रयान का मून मिशन बनाना है, I have to pinpoint each and every stage with a POC. Share picture, निकल गया, share picture, निकल गया, share picture. But इस पे bot लगा हुआ है. If there is a delay, it triggers a delay कि so and so Sachin truck was supposed to leave in this time, it is not left. So that हम रात सुबह जागे कि ट्रक नहीं पहुंचा, उसी समय there and there corrective measures can be taken. It alerts the system. Okay? Now here also you can see there were around 45 step plans and all of them were done, and out of that 34 was done on time. 24% टाइम काम से नहीं हुआ था, बट ये हमारी इंटरनल प्लानिंग है. क्लाइंट को एंड प्रोडक्ट टाइम पे ही मिलेगा, बट वी आर एबल, बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू टेक करेक्टिव स्टेप देयर एंड देन. ओके, एग्जाम्पल है, ये रिपोर्ट्स बनाते हैं हम इवेंट के बाद में कि प्लान ट्रक ने निकलना था, इतने बजे निकलना था, टाइम पे पहुंच गया, इतने बजे सामान आना था, आ गया, सेटअप कंप्लीट हो गया. कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ. ये POCs फोटोग्राफ के साथ होता है, इसमें कुछ हम और भी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं. यस, सब ऑटो पायलट. नाउ आई टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नाउ लेट्स कम एट टीम. सिस्टम तो बहुत अच्छे बना लिए, करेक्ट टीम कहाँ है आपके पास? There's another very beautiful quote, train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don't want to. पहले मैडनेस सी टीम बढ़ानी है, देयर हैज टू बी सिस्टम फॉर दैट. तो सर का जो हायरिंग ट्रैकर है, अब हम कहीं पे भी ऐड पोस्ट करते हैं, देयर इज वन ब्यूटीफुल सिंगल लिंक विच गोज, एंड राइट नाउ आप देखेंगे इसमें
1800-1900 रिज्यूमेज है मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्टली इसको लगाया है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं एक वो डालता हूँ, वी आर हायरिंग राइट पीपल। जैसे सर ने भी बताया था कि 800 में से मैंने 5 सिलेक्ट करे, तो यू आर हायरिंग राइट टैलेंट, यू आर नॉट हायरिंग एनीवन एंड एवरीवन। ओके, सो देयर इज अ मेथड, देयर इज अ HR ओनली फॉर हायरिंग, देयर इज अ रिक्रूटेड डेडिकेटेड ओनली फॉर हायरिंग, उसका और कोई काम नहीं है। तो ये सिस्टम इज वर्किंग ब्यूटीफुली फॉर अस। We use another software called Keka for attendance and leave and other stuff. Then what about culture? So this is all, these things which I'm showing you, these are all embedded in my intranet. So whenever to promote good culture, मैं सोच रहा था कि यार मेरी टीम कैसी होनी चाहिए। मेरी टीम वो होनी चाहिए कि जिनके साथ मैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, जिनके अंदर मेरे जैसा पैशन हो। तो मैंने उसके बेसिस पे अपनी कंपनी की वैल्यूज़ दोबारा बनाई। कुछ वैल्यूज़ हम 10 साल बनाते हैं, पहले बनाते हैं, वो लगी रहती है और हमारी कंपनी की दीवार पे टंगी रहती है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वैल्यूज़ वो हों जो जिंदा हों, ठीक है। तो आई एम अ लर्नर फॉर लाइफ। आई वॉन्ट माई टीम ऑल्सो टू बी ओपन फॉर लर्निंग फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, इनोवेटिव आइडियाज, गो गेटर, ऑनेस्ट, टीम प्लेयर। सो वॉट वी डू इज वेन एवर समवन is seen doing practicing one of the value, तो मेरे जो they can give me an kudos point, okay, and I can give to them, and real time appreciation हमारे Slack channel पे उनको share होता है कि congratulations रजत for demonstrating so and so value जिसने दिया, और उनके ये points accumulate हो रहे हैं। अभी हमारा अक्टूबर में RN आ रहा है, so beside other parameters मेरा culture is also taken care of because we'll be giving rewards based on the values as well. So this take care of culture. Wow Hub, इतनी नॉलेज हम जो जनरेट कर रहे हैं वो आगे ट्रांसफ़र कैसे होगी? मैंने जो सेल्स के सिस्टम बनाए हैं, कल को नया बंदा आएगा उसको क्या मैं खुद ही सिखाने बैठ जाऊंगा कि वाओ की प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, FAQs क्लाइंट के क्या हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, लिंक्डइन पे कैसे करनी है, कौन सी ID से करनी है, हमारे टारगेट क्लाइंट सेक्टर वाइज कौन है, कौन किस एरिया पे काम कर रहा है, लीड जनरेशन की कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या है, न्यूज़ टू मीटिंग जब हम करते हैं, जब हम इंडस्ट्री रिसर्च करते हैं तो उस समय क्या स्टेप फॉलो करने हैं क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए, व्हाट्सएप मैसेजेस पे क्लाइंट को जो रिप्लाई देना है वो क्या देना है, वो तक हमने लिख रखा है कि अगर क्लाइंट ने ये बोला तो आपको यही कॉपी पेस्ट करना है, अपनी भाषा में कुछ नहीं लिखना। What will this bring in? Lot of standardization, lot of scalability. Every person who's communicating, he's communicating with client in the same language. Okay? So मैं कुछ इसमें से screenshots दिखा रहा हूँ. Then whatever good knowledge is available, like for client handling, 7 strategic questions to ask clients, spin selling, LinkedIn marketing कैसे करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट नहीं करेंगे तो वो फिर कैसे काम करेंगे। there has to be a dedicated portal where they can access this। और ये क्या है? So this is made on the network which sir is using and this is a course। So once they complete, वो दिखता है उसने इतना complete कर लिया, उसने इतना complete कर लिया, उसने इतना complete कर लिया। Okay, so this is how we are managing the entire knowledge of our company। और ये daily बढ़ता जा रहा है, इसमें रोज नया content add होता जा रहा है। So रिजल्ट क्या मिला? ये सब तो आपने किया, बस बहुत अच्छा है। आप इसका आपको फ़ायदा क्या हुआ? एक तो वो जो सिरदर्दी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, राइट नाउ आई एम लविंग माई बिजनेस, इट्स अ जॉय ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस कोई सिरदर्दी नहीं है, इट्स जॉय, इट्स फन, आई एम लविंग इट एवरी डे। दैट इज गिवन मी फ्रीडम टू स्केल बिकॉज माई एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ऑपरेशन एंड ऑपरेशन सेल्स इज जस्ट डन, टेक्स 1 day of my time. Rest of the 5 days I am available to do courses like this, to meet people who are bigger than me, to discuss strategies, to scale, to upgrade myself. Because, yes, thank you. So how I did all this journey तो बताई नहीं। I joined MBA MBA 2.0 in 2022। 1 साल लगा के पूरा इम्प्लीमेंट किया अच्छे से सर की टीम के सपोर्ट के साथ। देन इमीडिएटली जब BGM आया, आई जॉइन दैट एज वेल, एंड दिस जर्नी इज कंटिन्यूइंग एंड इट विल कंटिन्यू विद सर फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम और लाइफ जब तक चलता रहेगा। तो थैंक यू केवल सर, एंड थैंक यू एवरीवन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा। थैंक यू। He deserves a standing ovation. He deserves a standing ovation. Woo! Please. Nice. Thank you. Sachin, Please stay, Sachin, please stay back. Please stay there. What
a presentation. Just like wow, the presentation was also वाओ, great. Please welcome Keval on stage. Keval, please facilitate Sachin ji. क्लैपिंग चलती रहनी चाहिए पूरे दिन. I hope I was तालियां नहीं रुकनी चाहिए. check. I hope I was able to deliver some value and of your time. It's okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. So, how are you feeling? सचिन भी इंसान है, सचिन भी बिजनेस कर रहा है, सचिन एंजॉय हिज लाइफ, वही खाना खाता है, वही दारू पीता है, वैसे ही लोग हायर करता है. जो आप हो वही सचिन है, कुछ डिफरेंस नहीं है. बट he just follow what is told, that's it. He is patient, he is consistent, he trusts the process. और वो लगता रहता है और बूम बड़ा हो जाता है. Yes or no? अब सचिन आप खड़े रहिए प्लीज, स्टेज पे आइए एक बार. दो 2022 लास्ट या एक साल में. सो सचिन का जो टाइटल था पीपीटी का, दैट वाज 100 करोड़ ब्लूप्रिंट. सचिन अब मुझे 100 करोड़ रेवेन्यू चाहिए. हो जाएगा? 100%. सो दिस इज द टारगेट आई एम गिविंग टू सचिन. और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो सचिन देंगे स्टेज पे, इनमें उस टाइम पे ब्लूप्रिंट होगा 500 करोड़ का. और तभी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टेज पे आने पे, जब ये अपना सेल्स डैशबोर्ड में 100 करोड़ की बिलिंग दिखाएंगे. राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. अब वो 10 करोड़ की सेल है, 100 करोड़ की सेल है, 1000 करोड़ सेल है, उसमें क्या मेरा कोई शेयर है? नो. क्या मेरी कोई इक्विटी है? नो. पर मुझे अच्छा लगता है. मैं चाहता हूं इंडिया का हर एमएसएमई सचिन की तरह सोचे. अगर इंडिया का हर एमएसएमई सचिन की तरह सोचेगा तो क्या यूएस, क्या चाइना, पूरी दुनिया में हमारा दबदबा होगा. हम इंडिया में हर बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कि जो कल सर ने बोला था विकास ने कि हम इन्वेस्टर बन सकते हैं और उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट भी बन सकते हैं. सो आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू सो मच सचिन, वंडरफुल प्रेजेंटेशन. नाउ सचिन ने बोला 2 चीजें, सिस्टम प्लस पीपल. हाँ या ना? यस और नो? अब मैं लंच के बाद आपको पीपल का साइंस बताने वाला.